Today, we have with us Dr. Rajan Kachoj, sir. On behalf of RCVP Narona Academy, I request our respected director, sir, to welcome sir with the Angvastra memento and a sapling. Thank you, sirs. Dr. Rajan Katol, sir, is an Indian Administrative Service Officer of the Madhya Pradesh cadre of the year 1979 batch. Sir has, in the course of a distinguished career, served in several ministries in the Government of India, including Ministry of Heavy Industries as a Secretary, Ministry of Finance, Ministry of Commerce and Industry, and Planning Commission. Sir has also served on deputation to the World Bank, Washington, D.C. in the office of the Executive Director on the board. In the state government, Sir has served in the departments of Transport, Home, Finance, Energy and Industries. Sir has extensive field experience in regulatory and development administration, including as the Collectorate and DM of Shahdol and Sihor district. Sir is a recipient of the Chief Minister's Award for Excellence in Public Administration in the year 2008. Sir has studied economics at St. Stephen's College, Delhi and the Delhi School of Economics. Apart from this, Sir has also published articles in professional journals and periodicals and continues to write on the subjects of contemporary economic interest. We welcome you, sir, once again to the Academy. Today, Sir will be delivering his session on the topic Regional Comprehensive Economic Partnership. Now, I invite Sir and hand over the session to the Sir. Sir. Thank you. इसमें आ जाए। Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon. And can you hear me in the last row? You can? Great. So, बैठिए ना please. So today we are talking about this regional comprehensive economic partnership and India. How does it relate to us? So पहले तो बताओ, how many of you have heard of this RCEP? You have? अरे, that makes my life very much easier. So, but today trade issues are in the headlines. I mean, maybe not because of RCEP. RCEP is already in place, but because everyone would have heard of Trump tariffs and the effect that it has on all of us. So I think I'll just try and start off with this structure. A little bit on the foreign trade scenario and India's balance of payments. And then we'll move on to the RCEP and what our role, India's role is in RCEP. I think first two bullets at least, I hope in the course of your preparation of competitive exams you would have at least done something on that. But nevertheless, as a background to this subject, I think there are certain things which we need to sort of have clear. So first is that trade, wide trade. No country can produce everything. मतलब अगर हम सब कुछ एक साथ अपने कंट्री में बना सके तो फिर ट्रेड की जरूरत नहीं है. The point is that nobody can and therefore everybody needs to trade in some way or the other. This something कुछ हमारे पास है, कुछ किसी दूसरे के पास है, and that is also
beneficial to all. Beneficial ऐसा है कि everyone has comparative advantage in something. अब like आप take India, हमारे यहाँ let us say jewelry का बड़ा अच्छा काम होता है. So all the jewelers in Gujarat, they can produce quality diamonds better than anybody else in the world. So it is exported everywhere. But major things like oil, we don't have that natural resource enough to, fuel our economy. तो हमें और देशों से लेना पड़ता है. तो everyone has some advantage with the other, and trade से होता है कि that सबका अपना जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है, और जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम करते हैं. एक्सपोर्ट करने के ऑब्वियस फ़ायदे हैं. अपना एक्सपोर्ट दूसरे कंट्री में करते हैं, से हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग या जो कुछ भी एक्टिविटी है वो उसका बढ़ावा मिलता है. इट जनरेट्स इनकम एंड इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. सो फॉर एग्जांपल जो अभी लोग बोल रहे हैं अबाउट द ट्रम्प टैरिफ्स, it has immediate effect because it has affected our trade with USA. और USA में दो बड़े important employment intensive sectors हैं. एक तो हमने आप ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी का है, एक मेरीन एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं. तो ये सब में बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं. एंड अगर ट्रेड एक तरफ से अफेक्ट हो रही है तो इट विल अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल. So employment is otherwise a very big benefit of if you can export more. But imports, I mean, is not a bad thing. Import से जो और जगह चीज़ बन रही है हमारे यहाँ नहीं बन रही है, उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है. As I said, I gave you the example of oil. तो oil एक very important factor है. Also prices. कि जो हो सकता है कि हमारे यहाँ भी बन रही हो, बट इफ वी जस्ट रिलाई ऑन दैट द प्राइसेस वुड बी मच हायर देन इम्पोर्टिंग इट. सो देयर आर मेनी थिंग्स जिससे के लिए हम इम्पोर्ट करना हमारे लिए अच्छा है. समटाइम्स टू डील विद सिचुएशंस हियर हम इम्पोर्ट करते हैं. कभी जैसे फूड ग्रेन्स में कुछ क्रॉप फेलियर हो गया, शॉर्टेज हो गया, तो इम्पोर्ट कर लेते हैं जिससे कि प्राइसेस कंट्रोल में रहे, लोगों को परेशानी ना हो. तो इंपोर्ट का भी अपना इट हैज़ अ रोल. एंड द थिंग इज दैट अब दोनों का एसेंशियली बैलेंस होना चाहिए. कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एक तरफ या दूसरी तरफ हो तो इश्यूज होते हैं. तो इसलिए हम अब एक स्लाइड आपके सामने ला रहे हैं. ये तो मोटा मोटा तो आप सब समझते हैं. आई थिंक इट्स ओके. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अब आई डोंट नो कितना आपको दिख रहा है, बट इस पर हम थोड़ा समय लेंगे बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस ब्रॉड टेबल तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड में और इंडिया का उसका पोजीशन है वो काफ़ी कुछ अपने आप में ही क्लियर हो जाएगा. इनफैक्ट जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो दिस वाज अ सब्जेक्ट विच आई थिंक टुक 6 days टू टीच. एंड एट द एंड ऑफ दैट इसमें इतनी बारीकियां हैं कि फिर भी हमें इतना समझ में नहीं आता था कि फाइनली हुआ क्या. तो इसको हम बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता रहे हैं. जो शेडेड एरिया है ऊपर, दैट इज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, which is the balance of trade. सबसे इम्पोर्टेंट ये पूरे इंटरनेशनल हमारे एक्सटर्नल ट्रेड रिलेशन में ये बॉक्स है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कितना सामान हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये मतलब हमारी ज़रूरत के हिसाब से है. दैट दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. सो एज यू सी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स and major exports are in India things like engineering products, petroleum products, gems and jewelry, textiles is 437. Imports are 720. And imports mein oil of course is very important, but electronic equipment, precious metals meaning
गोल्ड एंड ऑल, गोल्ड का काफ़ी भारी इंपोर्ट होता है। तो ये इम्बैलेंस है। तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो -282 US डॉलर बिलियन। US डॉलर्स बिलियन इज द स्टैंडर्ड यूनिट जिससे कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में बात करते हैं। तो अब बात यह है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, अब हाउ डू यू पे फॉर इट? हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इफ़ यू डोंट हैव द रिसोर्सेज यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 437। तो वो जो बैलेंस हो रहा है वो और चीज़ों से हो रहा है। एक नीचे आ रहा है हम सर्विसेज। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में मेनली बिग कंपोनेंट इज IT सर्विसेज, जो ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। तो वो बहुत ही बड़ा एक सेक्टर है हमारे यहाँ, ऑल्सो वेरी बिग एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। तो दैट ब्रिंग्स इन 387। बट सर्विसेज के इंपोर्ट्स भी होते हैं, एंड इट इज़ प्रोफेशनल सर्विसेज। इवन जैसे सर्विसेज में टूरिज्म भी आ जाता है, यू ट्रैवल अब्रॉड, दैट इज ट्रीटेड एज अ import of services because you are spending in foreign countries. तो बट मोटा मोटा इट इज़ अ पॉजिटिव बैलेंस विच आई रिटन नीचे, नेट सर्विसेज बैलेंस। तो जो ये घाटा है हमारा ये 282 वाला, ये पार्शली जो है सर्विसेज से कवर हो रहा है। बट उसके बाद आता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम। प्राइमरी इनकम इज यूजली जैसे फॉरेनर्स या फॉरेन इंटरेस्ट का यहाँ कुछ है, people are working here, they send money back or interest on securities here. Secondary income जो है is mainly remittances, and ये एक और बहुत बड़ा चंक है जिससे हम बेनिफिट करते हैं, क्योंकि हमारे इतने सारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, especially like in Western countries, in Gulf countries, and they send a lot of money back to their families. So that is foreign exchange which comes in, and that again helps to balance that gap in trade. इसके सब होने के बावजूद हमारा करंट अकाउंट विच इज दिस होल जो ऊपर तक ऑल दीज आइटम्स थोड़ा फिर भी घाटे में है। तो इसे हम नेक्स्ट टेबल पर जाते हैं, जो कैपिटल अकाउंट विच इज द पूंजी निवेश। तो कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की बात होती है। FDI आप समझते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इनफ्लोज हमारे आर नॉट बैड, 81 बिलियन, बट नेट विच मीन्स ग्रॉस से अगर आप निकालो जो रिपैट्रिएशन होता है ऑफ इन्वेस्टमेंट विच कैन बी थिंग्स लाइक, एक तो इंडियंस इन्वेस्टिंग अब्रॉड, हमारे भी आजकल बहुत काफ़ी बढ़ गया है। जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं दे आर investing. For example, you take Tata has investment in JLR in England, or Airtel Group has investments in Africa. So that becomes a negative for us. और इसी प्रकार people who have invested in India, what profit they take out, that also becomes a negative. तो हमारा net actually 0.35 रह जाता है वो सब घटाने के बाद। This is a recent trend. पहले FDI was always a big positive amount. अभी कुछ balance हो रहा है। Then you have NRI deposits, which is you NRIs की schemes होती हैं हमारे banks में, nationalized banks में, वो RFC scheme, NRO scheme कहीं कुछ होता है, and a lot of NRIs put their money here because you get better rates of interest than they would get in their countries. तो इसका पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो जो पूरा ये 3-4 चीज़ें हैं जो कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, विच आर कैपिटल आइटम्स, इट इज़ इन पॉजिटिव अगेन 18 बिलियन। इसके बावजूद घाटा है थोड़ा बच गया है, विच इज़ एब्सोल्युटली मार्जिनल कंसिडरिंग कि हमारा ट्रेड इतना ज़्यादा है, 400 और 700 बिलियन का, इट इज़ $5 बिलियन। तो जब एट द एंड घाटा पड़ जाता है, देन व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट आपके जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज में उतना थोड़ा कमी हो जाएगी, बिकॉज यू हैव टू पे फॉर इट। जो घाटा है समवेयर से पैसा आना चाहिए, अगर पैसा सर्विसेज से नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट से नहीं आ रहा, डिपॉजिट से नहीं आ रहा, तो अपने कैश रिजर्व से आएगा।
So that is why people keep foreign exchange reserves कि ऐसे इवेंचुअलिटीज में यू कैन पे. तो साइड में हमने बताया है कि करंट नहीं नीचे आज के हिसाब में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे 700 बिलियन से ऊपर है. तो 5 बिलियन निकालना इज नॉट अ बिग डील और आराम से मैनेज हो सकता है. बट बेसिकली जो पूरे टेबल में जो शेडेड एरिया है ये हमारी वीक पॉइंट है, ये कमज़ोरी है. इट इज़ बिकॉज वी आर नॉट बैलेंसिंग. तो ये सारे बाकी जो इनकम्स आ रहे हैं और जगह से वो सब आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस. जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव के लिए इफ़ यू लुक एट हाउ मच इज आर इम्पोर्ट 720 मतलब रफली एक साल के इम्पोर्ट से हम इसको वी कैन पे फॉर इट. कि अगर हमारे पास कोई पैसा नहीं आया, नो एक्सपोर्ट, वी कैन स्टिल मैनेज विद दिस रिजर्व. इन 1991 व्हेन देयर वाज दैट मेजर क्राइसिस जिससे कि ये लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, दिस फिगर वाज डाउन टू 1 बिलियन एंड दैट वाज इनफ एट दैट टाइम टू पे फॉर अबाउट 2 or 3 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट्स. कि अगर वो भी ख़त्म हो जाता तो सारा इम्पोर्ट हमारा बंद हो जाता एंड देन यू कैन सी व्हाट chaos there would be in the country. तो उस हिसाब से वी आर इन अ गुड पोजिशन एंड डिस्पाइट एवरीथिंग मोर और लेस बैलेंस हो रहा है. बट ये आर द मेन कंसिडरेशंस कि जो गुड्स के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में हमारा इम्बैलेंस है वो और सर्विसेज, रेमिटेंसेज, इन्वेस्टमेंट से मेकअप हो रहा है. अगेन जस्ट बाय वे ऑफ कंपैरिजन एट द अदर एक्सट्रीम जो आजकल जो चाइना की सक्सेस स्टोरी है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़बरदस्त चल पड़ा है. दे एक्सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड और वो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, उनको इतनी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, इतना इंपोर्ट नहीं होता. उनका जो ये ट्रेड बैलेंस है दैट इज़ इन पॉजिटिव. दैट इज़ अबाउट लास्ट ईयर्स फिगर वाज 990 बिलियन मतलब 990 बिलियन पॉजिटिव है. तो वो कुछ भी करें उनके यहाँ तो फॉरेन एक्सचेंज एक्यूमुलेट होता जाएगा, इसलिए वो बेतहाशा उसको स्पेंड भी कर सकते हैं. व्हाट ऑल द एम्बिशियस projects they have in the infrastructure project in the world because they have a huge reserve. So that gives the country some strength. But still, it is better than being in a very highly deficit situation. तो ये backdrop है. अब इस backdrop में आजकल क्या है trends in trade? एक तो there is this World Trade Organization WTO which was supposed to create a rules-based international order, promote competition, कि tariffs lower हो जाए, uniform standard रहे, सबके लिए एक rule रहेगा. और बड़े मुश्किल से 10-20 साल के negotiation के बाद इसका ये बना है. And it lasted in reasonable shape for about I think maybe 20-30 years. Again जब when in service, तो then this was just created and everyone thought कि अब ये trade के मामले तो solve हो गए. इनका एक dispute settlement mechanism भी था कि अगर कोई countries के बीच में trade dispute हो तो WTO will sort it out. Neutral empire. Unfortunately, today trade is being used as a weapon of state power. जो जिसके पास ज़्यादा दम है, they are not bothered about the WTO. They are just going ahead and as we can see, I'm giving just these 2 examples. One was that 3 years back when this Ukraine war started, so all the Western countries got together and said कि Russia के साथ we will cut off all trade, all relations. इससे ये भी हुआ कि दैट दे कट ऑफ एवरीथिंग. तो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे कि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, उसका माल आना है, सब कुछ बंद कर दिया, विच इज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ. जो रशिया के रिजर्व्स थे विच वाज पेमेंट्स फॉर ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स दैट दे हैड मेड, वो सब फ्रीज कर दिए. तो ये सैंक्शंस वर इंटेंडेड टू penalize Russia. But the point was that they were all just because certain countries got together and decided
WTO का इसमें कोई रोल नहीं था और ना ही कोई WTO के पास गया कि ये हमारे साथ जाती हो रही है, because I mean that's it was. Second is what is happening in the last 1 year, that unilateral tariff imposition by US. Again, they are not bothered about WTO. अब राष्ट्रपति साहब उनके जो है he has decided कि इस पर 25% टैरिफ लगेगा तो लग गया, and it is actually quite surprising कि वहाँ एक आदमी में इतना एग्जेक्टिव पावर है कि आज जो डिसाइड करे कल से लग जाता है. आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी अदर कंट्री देयर इज सम मैकेनिज्म, कुछ कैबिनेट जाना पड़ता है, किसी को पार्लियामेंट जाना पड़ता है, बट दैट्स व्हाट्स हैपनिंग एंड दैट इज बीइंग यूज्ड टू लिवरेज कंसेशंस कि बेसिकली आपने ट्रेड में हमारे साथ समझौता नहीं किया तो हमने लगा दिया. आपने जैसे हमारे केस में हुआ, आप रूस से तेल ले रहे हो तो हमने और टैरिफ लगा दिया. सो इट इज बीइंग यूज्ड इन अ वेरी आर्बिट्री मैनर एंड दैट इज द वर्ल्ड वी आर इन राइट नाउ. India's response, as we know, I mean, to both these situations, tariff mein there is discussion on a trade deal with the US, but we are not responding to the US in a tit for tat way, because हमें उन पर उनके साथ ट्रेड में बहुत फायदा है. As just to give the numbers, I think in terms of exports, I'll think I have it somewhere. In terms of exports, we export about $131 billion to US. Imports are 45 billion. So this is one of the surplus areas for us. So obviously tariff will hurt us. हम tariff लगाए उन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. So the correct thing is to just sit out and try and reach a free trade agreement. Similarly, Western countries, when they sanctioned Russia, so India's response was again, they wanted India also to sanction, but we didn't get into that, and in fact took advantage of the situation, because then Russia was forced to sell oil and all to other countries cheaply, and I think last 2-3 years most of our oil is coming from Russia, which is good for our consumers, because then prices at the petrol pump have not gone up, because तो हमारा मतलब इसमें अपना रिस्पॉन्ड करना है. और जगह ये सब चीज़ें हो रही हैं विच आर नॉट वेरी डिज़ायरेबल, बट यू हैव टू फाइंड अ वे. तो अब इस सब एटमॉस्फेयर के बीच में, आई मीन फर्स्टली आर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बीइंग व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नाउ वी कम टू RCEP, which all of you know, but okay, I'll just recap. It's worth remembering that RCEP, it was initiated by the ASEAN countries. अब ASEAN countries क्या है? It is mostly a group of Southeast Asian countries which are in a free trade agreement amongst themselves. I'll just read out. This is Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, covers everybody in Southeast Asia. So they decided, because they had free trade agreements, ASEAN with some other countries, with Australia, with India, with China, कि क्यों ना एक बड़ा सा ब्लॉक बना लें जिसमें ASEAN and all their partners get together and have common rules like a mini WTO. कि similar kind of arrangements कि we will reduce tariff, we will have fair competition और सबका आपस में इसमें benefit हो. So, but anyway, what RCEP is today is 10 ASEAN nations and the FTA partners China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand. It was launched in 2012, the negotiations. There were then 31 rounds of negotiations, because negotiations with 15, 16 countries so will take time. It is not the same as two countries ki haan theek hai, this is what I want, this is what you want, and let's decide. Here we are trying to agree on rules, on principles, like WTO. So 31 rounds में से 2 rounds इंडिया में भी हुए, एक दिल्ली में, I think हैदराबाद में. Eventually it was signed in 2020 and ratified by all the parliaments and the countries,
and effective 2022. So it is in force. And what does it aim in a very, very broad way, which again you may know, but the overarching aim was we will eliminate tariffs amongst our countries which are participating on 90% of traded goods. 90% meaning that obviously 100% नहीं हो सकता. There are some things which are sensitive जिसमें हम कहते हैं कि नहीं इसमें तो हम नहीं allow कर सकते free trade for whatever reasons. जैसे इंडिया में होता है फार्म सेक्टर का प्रॉब्लम है, we don't want farmers to be affected. So they said ठीक है 90% of value, वो भी within 20 years. So उसमें what they were working out to the formula, जैसे आज आपका suppose only 20% is without tariffs of goods. तो अब ठीक है, एक साल में इसको 30 लाइए, 5 साल में 50 लाइए, ऐसे करके 20 साल में 90% लाइए. लेकिन ये कमिट करना है, दिस इज पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट कि आप कैसे कैसे करोगे और 90 कैसे पहुंचोगे. एंड दिस कवर्स गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्निकल कोऑपरेशन. Notably, this was one agreement which excludes reference to environment, labor and human rights, which in almost any agreement which we sign with Western countries, conditionalities are there. I mean, for example, human rights could be that you are persecuting so and so group in your country, so therefore we can't agree on this. Say a product made in that area. Environment is that this industry is polluting compared to our Western standards. Labor में issues आते हैं, conditions of labor are not as per standard. So these become barriers which are usually to the negative for the developing countries, जिनके standards उतने नहीं हैं. अब यहाँ सभी लगभग developing countries थे, so they agreed कि ये सब रहने दो, we just stick to trade. अब global significance ये कि that this accounted for 30% of global GDP, 1/3 of the world's economy. It created the world's largest export supplier, second largest import market, shifted economic center of gravity towards Asia. West में तो अब segmentation हो गया है कि वो आपस में इतने झगड़े हैं. Middle East is a disturbed area. So Asia has become now a center of growth. And all these countries are actually doing quite well, जितने भी ये members हैं इसके. So they were projections at that time. I think the projections were for 2030, if I remember, कि exports जो होंगे इसके total फायदा जो होगा सब countries को मिला के would be about $514 billion by 2030. जिसमें जो country specific जो study की थी for India was that if India joined, it would be a benefit of about $60 billion in GDP, and if it did not, it would be a decline of $6 billion. Decline ऐसा कि that suppose you are not part of it, then the countries which are part of it will have preferential access. They would rather trade with each other than a country which is outside. So that was the broad significance. It was a huge block, and it continues to be right now the world's largest free trade agreement. I put that as a heading. See, the interesting thing इसमें ये है कि India was a founder member. कि जब शुरू में ये बात हुई कि RCEP बनेगा, it was first decided within ASEAN. Then ASEAN they reached out to all the countries they were trading with, which they had some agreement, and invited them to join. And they invited India also to join. Now this period actually happens that at the time I was working in the Commerce Ministry, I was then the Additional Secretary. और ये सब चर्चा होती थी. I mean, people used to discuss कि अच्छा ये ASEAN का ये आ रहा है, ये नया चीज़ बन रहा है.
एंड एट दैट टाइम द व्यू जो ऑफिशियल लेवल पर भी था, पॉलिटिकल लेवल पर भी था कि दैट दिस इज अ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, कि भाई एक झटके में अभी तो हम अलग अलग जाकर एवरीवन से अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं, एक झटके में हमें ये सब मिल जाएगा. एंड द पॉइंट ऑन विच दे वर वेरी क्लियर वाज दैट agreement जब तक कि सब सहमत ना हो, it will not be finalized. So it is not that anybody will sort of push us into something. आप जब तक आपका satisfaction नहीं हो, you don't sign. And only when everyone signs, then the agreement is effective. That is why it took so long, because to get 15, 16 countries to agree on each and every point is a big deal. तो उन्होंने सोचा कि it will boost trade with all our regional partners, which were all again mostly engines of growth. अब एक दो छोड़ के. And the lessons of experience was that basically trade is an engine of economic growth, and some very notable examples apart from China, even India, pre-1991 and since then, post-liberalization, पहले हमारा share in world trade was about, not share in world exports, was about 0.6% in 1991. आज है 1.8%. Main difference is कि वो compared to then tariffs have been lowered considerably, और हमारा ट्रेड तब से 20 गुना ज़्यादा बढ़ गया है. तो विद दिस द फीलिंग वाज कि ये और बढ़ेगा, बिकॉज ये सारा मार्केट हमें फेवरेबल टर्म्स पर मिलेगा. Then the idea was that linking with global value chain, this is also one of the objectives of RCEP. उनके stated objectives में है कि जैसे वैल्यू चेन बनती है कि एक कंट्री में रॉ मटेरियल है, दूसरे कंट्री में कुछ प्रोसेसिंग होता है, थर्ड कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग, एंड फोर्थ कंट्री में मार्केट है. तो इफ़ यू कैन फाइंड दी स्टेजेस विद इन दिस ब्लॉक, 15-16 कंट्रीज में आप 2-3 स्टेज आपको मिल जाएं, तो उतना आपको एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिकॉज ईच टाइम यू आर गोइंग टू सम अदर कंट्री, उस पर टैरिफ लगेगा, उस पर थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा. सो हियर big multinational companies and all would find it convenient कि आपको, I mean, just to take an example, it is like China से हमें one of the very important imports which we have is raw material for pharmaceutical products. उस पर हमारे drugs बनते हैं and medicinal drugs, and they are exported mainly to the West. So, but then we also have restrictions on imports to China, that there are barriers. Cost of that would probably come down. Then builds investor confidence, because investors know that, okay, if we set up a facility in one of these countries, we get market access to all the countries. तो सभी में हमारा product favorable terms पर जाएगा. So this is another thing. And the final thing, which is of course not an economic point, but it is to be a player and not a bystander, कि हाँ इतना बड़ा ये चल रहा है, बन रहा है, and if you are a part of it, you can shape it. You can say कि भाई थोड़ा ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. If you are not, then well, other people will decide. So that was the thinking I'm telling you. उस time ये सब बातें हुई हैं, and everyone felt कि नहीं, we should get into it, and we did. और ये 31 राउंड में हमारी टीम गई और negotiate किया and tried to shape it the way we want and listen to what other people wanted. But the big but is that we withdrew from the negotiations in 2019, और 2020 में ये finalize हो गया. अब ये withdrew, it was a big event, and उसमें 2019 में, if you go back to the discourse at that time, कि there was a lot of debate about it. It was a good move, bad move, or whatever. So that for us is the most important thing कि एक ये trade block बन रहा है, which
claims a lot of advantages. We were part of it from the beginning, but we withdrew. Now we try to just go into कि क्यों withdraw हुआ, because after all ये सब decisions ये top level पर होती हैं. तो in fact that meeting जिसमें withdraw हुआ, उसमें Prime Minister had gone himself, and जब उन्होंने announce किया, that the main operative part of his announcement says that the RCEP did not address India's concerns. But वो spell out नहीं हुआ कि concerns क्या थी. It was in a general thing, and within the RCEP members, there was a bit of surprise, and ASEAN members in particular wanted India to reconsider that you should join, because they had conceived this as something in which all these heavyweight elements which they are dealing with are in balance. तो उनको लगा इंडिया निकल जाएगा तो बैलेंस चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. बट एनीवे, बाद में इट emerged, इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए, एंड फ्रॉम दैट इट emerged that there was a feeling that there was a negative experience in the earlier FTAs with ASEAN, Japan and Korea, जो all who were going to be part of RCEP. पहले हमने अलग अलग ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स किए थे, तो इन सब के साथ इट वाज अ नेगेटिव बैलेंस की सेंस कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम थे, इंपोर्ट्स ज़्यादा थे. सो फिर लगा कि शायद इसमें भी होगा, एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गेव अ स्टेटमेंट दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड अरेंजमेंट्स and we are going for Atmanirbhar Bharat self-reliance. Atmanirbharta is still a very important goal, but it is a question of what you understand by Atmanirbharta. Again, as I said right in the beginning, every country cannot be totally self-reliant कि हमने दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है. That is not Atmanirbharta. But you should certainly, अब जैसे चाइना पहुंच गया है, वो आत्मनिर्भरता है कि आपने कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग, तो आपकी पोजीशन फिर बहुत स्ट्रांग हो जाती है. इनफैक्ट पूरी दुनिया में एक ही कंट्री है जो पूरी तरह आत्मनिर्भर है, इन द वेरी स्ट्रिक्ट सेंस. एनी गेसेस? नॉर्थ कोरिया, राइट? सो एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड रोल मॉडल, आई थिंक. बट वो बिकॉज दे डोंट डील विद एनीबडी एल्स, तो वो अब वैसे ही जो गरीबी है उसमें फंसे हुए हैं, एंड दे हैव अ मिडीवल राज देयर. तो एनीवे, बट दिस वाज द ऑफिशियल स्टेटमेंट्स. और इसके बाद हम थोड़ा सा और जो emerged फ्रॉम द पीपल हु आर इन्वॉल्व, और वो उस समय हमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ये हुआ कि somebody, I think defense side में this was also being analyzed, इसके क्या strategic implications हैं, and somebody asked me to write something for one of their defense journals on RCEP की pros and cons. तो तब थोड़ा सा हमने अपने पुराने colleagues में से किसी को पूछा. So some of these things emerged at that time. One was that there were these tensions with China at that, border incidents और वो सब हो रहे थे, तो थोड़ा concern हो रहा था उस पर कि that should we get into an arrangement जिसमें कि चाइना भी है. But there was more important, जैसे आपने किसी ने mention किया कि that there will be a surge of cheap Chinese imports. अगर हम पूरा allow कर दें RCEP के कंडीशंस के अनुसार, और हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री विल गेट हर्ट. फिर एक कंसर्न ये था कि डेयरी और एग्रीकल्चर में भी कंपटीशन फिर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि नुकसान हो सकता है. particularly Australia and New Zealand, whose dairy and agriculture sector is very strong. तो
उनका सेक्टर बहुत स्ट्रांग है एंड अभी बट यू कांट एस्केप इट, हमारा थोड़ा प्रोटेक्टेड सेक्टर है। आज भी जो हम यूएस से नेगोशिएट कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उनका भी वही पॉइंट है, वो कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में हमें कुछ प्रेफरेंशियल एक्सेस मिले, एंड दैट इज़ वन ऑफ द स्टिकिंग पॉइंट्स देयर आल्सो। एंड फाइनली देयर वाज अ गैप इन द नेगोशिएटिंग पोजीशन व्हिच दे सेड कि हम चाह रहे थे कि जो ये फेज्ड विड्रॉल होगा ऑफ टैरिफ्स, it will be 70 to 80% of the total goods, not 90%. But अब इसमें anyway, so 90% had been agreed by everybody else, but agreement had not been finalized because हमारे यहाँ वो agreement नहीं हुआ था. But these were all the concerns, and the point is all these inputs come in, and at the high level somebody has to take a call कि ये हमारे इंटरेस्ट में है कि नहीं है. And at that time, that was the decision taken. तो अब ये है ऑप्शंस क्या है, बिकॉज ये तो हमने डिसीजन ले लिया कि विड्रॉ करना, हमने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने they went ahead and then with the rest of the people agreed to finalize with that 90%, with 20 years. And, I mean, finally it is countries, not just ASEAN countries, not just China, but countries like Japan, Australia, New Zealand, which are actually part of the Western bloc, but they all agreed, everyone agreed. So, but we decided to stay away, and that in a way aligns with the protectionist stance that we have been taking over the last many years. Protectionist meaning that little less liberal. पहले liberalization का phase हुआ था 91 के बाद, अब थोड़ा सा curtail हो रहा है। ये हमने एक फिगर डाल दिया है कि इससे पहले ये था 91 में हमारा एवरेज टैरिफ रेट लगभग 125% था। तो जब रिफॉर्म्स हुए तो वन ऑफ द इश्यूज वाज टैरिफ्स। हमारा एक तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का इशू था कि दैट यू आर टेलिंग एवरीवन व्हाट टू मेक एंड हाउ मच यू कैन मेक, और दूसरा था टैरिफ का कि हमने बाकी दुनिया को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, इसलिए शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड कम था। तो देयर वाज एन एफर्ट टू रिड्यूस इट, इन ओवर 10-15 years इट वाज रिड्यूस्ड टू 13%, बट पिछले 10 साल में इट इज अगेन इंक्रीजिंग, अगेन अंडर प्रेशर्स कि कोई इंडस्ट्री कह रहा है कि भाई वो कंपटीशन हो रहा है उस कंट्री से, तो थोड़ा प्रोटेक्शन बढ़ा दो। सो इट इज नाउ 18%, विच इज स्टिल इतना ज़्यादा भी नहीं है। सेकंड जो हो रहा है अपना पॉलिसी लेवल पर शिफ्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कि हालांकि हम ऑफिशियली तो एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट भी है, बट एक्चुअली जो फोकस ऑफ FTAs इज नाउ मोर ऑन द वेस्ट। तो आप तो पढ़ते भी होंगे दैट अभी over the last few months UK के साथ एक FTA हुआ है, EFTA तो अभी हुआ है, दैट यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, कुछ 3-4 कंट्रीज का है। UAE के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, और ये 3-4 चल रहे हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और US। ऑफ कोर्स US is the most important for us, but it's basically a more Western focus. But इसमें जो बहुत बड़ा caveat है, and that is the, I think applies to all FTAs. If you have to derive the benefits from FTAs, तो फिर हमारे यहाँ अपना internal arrangements ऐसे होने चाहिए जो और जो आपके पार्टनर कंट्रीज हैं उनके लगभग बराबर हो। एंड पर्टिकुलरली इन दीज एरियाज, वन इज व्हाट वी कॉल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज अ जार्गन, मतलब जार्गन का जो आप रियलिटी में जब ट्रांसलेट करते हो, उसका मतलब यह है कि कोई
बिजनेस सेटअप कर रहा है एक्सपोर्ट के लिए, तो उसको कितनी जल्दी उसको सब फैसिलिटीज़, लाइसेंसेस, अप्रूवल्स मिलती हैं, कितनी जल्दी वो सेटअप कर सकता है, कितने कम लोग उसको तंग करें, बिकॉज एक्चुअली इफ यू टॉक टू एनी स्मॉल बिजनेसमैन देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैरेसमेंट। मतलब हमारे ही अपनी सरकार की एजेंसी से ही जो फील्ड लेवल पर लोग डील करते हैं वो हर चीज़ पर तंग करते हैं, जो मेनी अदर कंट्रीज़ में इतना नहीं होता है। जो टेस्ला आपने सुना होगा, दे हैव दीज 3 बिग प्लांट्स इन द वर्ल्ड, वन इज इन यूएस, एक बर्लिन में, एक शंघाई में। तो शंघाई में जब उन्होंने प्लांट सेटअप किया तो उनको जब चाइना गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला, विच वाज ऑफ कोर्स टुक सम टाइम, बट अप्रूवल मिलने के 1 साल के अंदर दे हैड दिस ह्यूज प्लांट रेडी विच वाज प्रोड्यूसिंग 500,000 कार्स। तो आई मीन इफ यू जस्ट थोड़ा सोचो, कैन यू थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट हैपनिंग इन आवर कंट्री? आई मीन देयर इज सो मेनी थिंग्स, 1 साल में तो इतना बड़ा कुछ हो नहीं सकता। सो वी हैव टू रीच दैट स्टेज, एंड देन सम रिफॉर्म्स इन सम बेसिक एरियाज। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेनली व्हेन वी टॉक ऑफ ट्रेड, इट इज पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट। तो हालांकि बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आई थिंक ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स लॉट ऑफ एफर्ट हैज गॉन इनटू इट, बट इवन टुडे हमारे पोर्ट्स में 2-3 दिन लगते हैं फॉर ए कंटेनर शिप टू कम, अनलोड एंड गो बैक होम। एंड इन अ प्लेस लाइक सिंगापुर ये टर्न अराउंड 24 घंटे में होता है। तो हमें बेसिकली स्टडी करना है कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एशियन मॉडल्स आर एक्चुअली वेरी गुड, देयर आर ऑफ द एशियन कंट्रीज आर क्वाइट एडवांस्ड। लेबर में ऑफ कोर्स वो इश्यूज हैं ही, रिजिडिटी की, आप हायर कर सकते हो लेकिन फायर नहीं कर सकते। सो ऑल दीज थिंग्स वे व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग, बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद अदर कंट्रीज जहाँ ये सब चीज़ें सरलता से हो जाती हैं, तो उनके कॉस्ट कम हो जाते हैं। तो लैंड इशूज ऑल्सो, एक्विजिशन में, टैक्सेशन में हमारे यहाँ थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहती है कि टैक्स रेट बदल जाते हैं। अब जो कोई इन्वेस्ट करने आता है, ही वांट्स प्रिडिक्टेबिलिटी कि मैं आपने चलो 10% इस पर ले रहे हो, आप श्योर करो कि 5 साल 10 साल तक ये नहीं बदलेगा। बट हमारा थोड़ा बदलता रहता है, और कभी कभी जैसे एक वो फेमस केस था आपका, कौन सा, वोडाफोन रेट्रोस्पेक्टिवली बदल गया, तो देन दैट क्रिएट्स डिसइंसेंटिव। सो दीज आर ऑल इश्यूज विच विल अराइज इन ऑल दीज FTAs ऑल्सो। तो हमें ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर इन सब में भी बैलेंस हमारा थोड़ा एडवर्स ही रहे, बिकॉज until all these internal things are sorted out, there is likely to be a issue. But currently ये position है that we have decided to stay away, and these are the broad reasons. I think eastern side में अभी इतना focus नहीं है, and the other option is of course to rejoin. Rejoin में सबसे पहले the slight disadvantage you will face is that it's already now finalized. But इन्होंने एक exception किया है in the final document, because India was a founding member, so it retains the right to rejoin anytime. आप अभी 5 साल के बाद अगर आप कहते हैं कि हमें RCEP में जाना है, so they are bound to accept. At this time RCEP के लिए waiting list बन गई है, because other countries in Asia, Bangladesh, Sri Lanka, these are all applied कि हमें भी यहाँ बनना है. They have not admitted anybody else yet, but obviously other countries are lining up, तो उनको कुछ उसमें फायदा ही दिख रहा है. So we have that right to rejoin.
वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड में हमारा अभी आई टोल्ड यू 1.8% का शेयर है. So one has to be certainly thinking of a share of exports which is more. And to give comparisons, ये चाइना तो खैर बहुत आगे है, उनका आई थिंक 14% शेयर है. बट मेनी अदर कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज लाइक सिंगापुर के आई थिंक 2.3% या कुछ है. वियतनाम का शेयर लगभग हमारे बराबर है, 1.8%. वियतनाम इज़ अ एक्सीलेंट एग्जांपल. कंट्री जिसमें 20 साल तक लड़ाई झगड़ा चला, टोटली डिवास्टेट हो गया, एंड वही 70s के बाद ही पिकअप होने लगा. बट दे वेंट वेरी हेविली फॉर लिबरल रेजीम एंड ट्रेड ओरिएंटेड. तो उनके ट्रेड के बल पर इतना प्रॉस्पर कर गए हैं कि दैट देयर ट्रेडिंग capacity is as much as India's, which is so many times larger and has so much more potential. Second is that if India rejoins, तो वो phased commitments हो सकते हैं. That is part of their charter. So essentially it is a question of backloading कि there are certain sectors जो हम नहीं चाह रहे कि अभी competition हो, तो वो आप 5 साल के बाद, 10 साल के बाद अब you can add. The basic thing is that we have to believe that हमारी इंडियन बिजनेस इतनी नाजुक नहीं है कि थोड़ा कंपटीशन से ख़त्म हो जाएगी. We have to be able to compete to grow, because इसी आप टैरिफ के प्रोटेक्शन में रहोगे तो हमेशा हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर और कंट्री से ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा रहेगा तो आप उन कंट्रीज में आप सामान बेच नहीं पाओगे. सो सम कंपटीशन नीडेड. इट इज़ ये है कि झटका नहीं लगना चाहिए दैट अभी आप उनको 30% का प्रोटेक्शन दे रहे हो, कल कहोगे कि 0, तो इट कांट बी हैंडल्ड. बट आप कहोगे कि नहीं हम 10 साल में 0 ला रहे हैं, तो आपको टाइम है, यू कैन एडजस्ट, एंड दैट इज़ पॉसिबल. And if it is so, then it can become a more attractive FDI destination. जो अभी हमारा by staying out, in a way, all the countries within RCEP have gained an advantage over us. That within them they are trading freely. हम trade कर रहे हैं तो we will have tariff barriers. So it's a question of those again global value chains. जो आप पढ़ते होंगे पेपर में चाइना स्पिल ओवर की बात होती है कि जैसे आजकल वेस्ट में और स्पेशली यूएस में वो डिस्करेज कर रहे हैं अपने कंपनीज को कि चाइना में और इन्वेस्ट मत करो. ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो दीज बिग मल्टीनेशनल्स अगेन आर लुकिंग फॉर अदर अल्टरनेटिव्स टू इन्वेस्ट इन, एंड द फीलिंग इज दे मे कम टू इंडिया. सम हैव, फॉर एग्जांपल द मोस्ट नोटेबल एग्जांपल इज दिस, ये फॉक्सकॉन इज मेकिंग iPhone in India. That is a Taiwanese company which is making here for export to the West. But today अगर कोई चाइना में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है और यूएस गवर्नमेंट उनको बोलती है कि नहीं आप चाइना मत जाइए बिकॉज पॉलिटिकली ठीक नहीं है, बट ही वांट्स द चाइनीज मार्केट, तो वो डालेगा वियतनाम में और इंडोनेशिया, बिकॉज यू आर नॉट इन चाइना, बट आपके साथ 0 टैरिफ एग्रीमेंट है एज पार्ट ऑफ RCEP. तो टू एक्सेस द चाइनीज मार्केट विदाउट बीइंग इन चाइना लोग RCEP कंट्रीज को चुनेंगे. तो उसमें थोड़ा सा गेन डिसएडवांटेज हो जाता है कि सिमिलर चैलेंजेस इन 1991 आई एम रेफरिंग टू इज जब ये लिबरलाइजेशन हुआ था. उसी समय just as an anecdote, so I was posted in the World Bank, Washington in India office है वहाँ, और जब ये पूरा bankruptcy situation हो रहा था यहाँ, and our people were negotiating for assistance from World Bank and IMF, तो ये सब बातें आई थी, और उस टाइम कई मीटिंग्स हुई थी वर्ल्ड बैंक के टॉप ब्रास से, हमारे तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, बड़े इकोनॉमिस्ट लोग थे.
और हम तो उस टाइम पीछे बैठते थे, बट यू कुड देयर वाज अ लॉट ऑफ वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि भाई हमारे लोग हम चाहते हैं कि वी वांट टू इंटीग्रेट मोर, बिकॉज बाय क्लोजिंग योरसेल्फ ऑफ वी आर जस्ट बॉक्स्ड आवरसेल्फ इनटू अ कॉर्नर कि हमारा वर्ल्ड के साथ लिंकेजेस नहीं है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहे हैं, तो जब तक कि आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे नहीं, आप इनकरेज नहीं करोगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, तो कैसे होगा। बट ये डर था, और डर ये भी था कि पॉलिटिकली लोग यहाँ क्या कहेंगे कि आपने यू आर अलाउइंग फॉरेन इम्पोर्ट्स एट चीपर प्राइसेस, कंपटीशन हो रहा है, तो हमारी इंडस्ट्री कैसे कोप करेगी। डोमेस्टिकली ये था कि जो लाइसेंसिंग और कंट्रोल से वो रिलैक्स कर रहे हैं, तो फिर ये चिंता थी कि भाई वो रिलैक्स करेंगे तो उद्योगपति पैसा बनाएंगे, गरीब पिसेंगे, प्राइसेस विल राइज, सो मेनी थिंग्स। वी डिड नॉट फुली अप्रिशिएट कि कंपटीशन का बेनिफिट क्या हो सकता है। और अदर टू बी फेयर, जो हमारे लोग थे जो एट द टॉप एट दैट टाइम, दे डिड अप्रिशिएट, बट दे वर वरीड अबाउट द डोमेस्टिक रिएक्शन। बट एज इट हैपेंड दैट द पॉलिटिकल डिसीजन एट द टॉप वाज कि नहीं, वी हैव टू गो अहेड, बिकॉज कोई रास्ता नहीं है। हम तो नेगोशिएशन जो चल रहे थे वर्ल्ड बैंक में, अनलाइक मेनी अदर कंट्रीज, एंड दैट आई हैव सीन फर्स्ट हैंड, और कंट्रीज में तो वर्ल्ड बैंक ने पता है, उनकी दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, कहेंगे साहब आप ये करिए, हम पैसा देते हैं। इसमें बिकॉज हमारा टॉप लीडरशिप में ही इकोनॉमिस्ट लोग थे जो वहाँ who had respect there, they had worked in those kind of places also. So they said that look, we can do this, हम ये liberalization कर सकते हैं, इसके लिए आप पैसा दो। And the negotiation only was कि भाई are you right, इसमें आप इतना आप जो समझो कि टैरिफ डाउन करेंगे, इतना करना चाहिए कि थोड़ा और कर सकते हैं। But the suggestions came entirely from within, and it was agreed upon that if we do this, then you will give. So because it was like that, so it was not treated as a condition, and in fact जो sequencing ऐसा हुआ कि जो रिफॉर्म्स करना चाहे, आई थिंक 1991 के जो बजट आया, तो बजट में ऑल द प्रपोजल्स केम इन, एंड वंस दे वर क्लियर्ड, तो उसके बाद फिर इनके वर्ल्ड बैंक ने सहायता भी दी एंड अग्रीड टू ऑल दोज थिंग्स एज पार्ट ऑफ द देयर कंडीशंस, मतलब उनके इंटरनल कहने के लिए कि हाँ ये सब चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। एंड जो उसका रिजल्ट वाज एग्जैक्टली एज पर द जो लोग हमारे यहाँ सोच रहे थे कि होना चाहिए, हुआ। कंपटीशन से ये हुआ कि हमारे इंडस्ट्रीज ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए and exports बढ़े, imports भी बढ़े, but the overall benefit is that, as I said, the share in the world exports increased from 0.6 to now 1.8 today. So it's आज भी एक थिंकिंग ये है कि RCEP वगैरह जैसी हम करें, प्रेशर आएगा ऑब्वियसली, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑन चाइना, बट इवन अदर कंट्रीज, मेनी अदर ऑफ दीज, जापान, साउथ कोरिया, ये वो सब आर कॉम्पिटिटिव आएगा, लेकिन हमारे लोग उसमें कोप कर पाएंगे। बट एनीवे, दैट इज वन लाइन ऑफ थिंकिंग, एंड देयर इज अनदर, और ये जो है दिस इज अ ब्रॉडर थिंग, नॉट अ प्योरली इकोनॉमिक थिंग, दिस जियोपॉलिटिकल। इसमें यह है कि हमें थोड़ा सा रिलायबिलिटी ऑफ आवर वेस्टर्न पार्टनर पर भी क्वेश्चन मार्क होने लगा है, और होना भी चाहिए। वन शुड नॉट बी पुटिंग ऑल वन एग्स इन वन बास्केट। अदरवाइज थोड़ा टेंडेंसी ये था कि वी वर फॉर्मिंग अ प्रो वेस्ट अलायंस एंड एंटी चाइना एंड ऑल दीज ईस्टर्न कंट्रीज, बट RCEP में आपने देखा है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया जो हमारे प्रो वेस्ट क्वाड के पार्ट हैं, वो भी RCEP के पार्ट हैं, तो वो दोनों तरफ अपना प्ले कर रहे हैं। सो वी हैव टू थिंक ऑफ दैट। वेस्ट में ये हुआ है कि आई थिंक द लास्ट स्लाइड सर,
वेस्ट में वो है कि दैट ये विम्सिकल बिहेवियर से लग रहा है कि ये रिलायबिलिटी इसमें कम है, एंड दे यूज ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी. स्मॉल लिटिल पॉइंटर्स लाइक बीच में हुआ कि रशियन ऑयल पर सैंक्शन लगे बाय द यूएस. तो एक कंपनी अपने यहाँ है नायरा, विच इज पार्शली ओन्ड बाय रशियन ऑयल कंपनी. तो यूएस ने ईयू ने लगाया, तो तुरंत माइक्रोसॉफ्ट विच यूज टू रन ऑल देयर आईटी सिस्टम्स ने अपनी सेवाएं बंद कर दी. जबकि कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उनका एक्चुअली ऑपरेशंस थोड़ा ठप हो गया. दे वेंट टू दिल्ली हाई कोर्ट, तो वो कोर्ट केस लगाया, तो वो फिर दे रिस्टोर्ड बिकॉज दे न्यू दे विल लूज. बट दैट्स द काइंड ऑफ थिंग. Second is that it is a strategic opportunity, and here I am putting in quotes. जो उस समय हम विड्रॉ किया है, तो the view in ASEAN में एक बड़े important thinker है, आपने कहीं नाम सुना होगा, किशोर महबूबानी. I don't know if you heard of him. सिंगापुर के हैं, Indian origin, but he has been there लीडिंग डिप्लोमैट, प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और कई कुछ हुआ है. तो वो लिखते हैं, तो उनका एक लेख आया जिसमें कहा कि ये आरसीईपी में अब ये वन साइडेड हो जाएगा, और इंडिया हैज़ डन अ ग्रेट जियोपॉलिटिकल फेवर टू चाइना बाय स्टेइंग आउट ऑफ आरसीईपी. बिकॉज तब तक धारणा ये थी कि ये सब 4-5 heavyweights, Australia, Japan, China, India will be balancing it. तो that was the perception from there. उनको लगा कि ये मैदान छोड़ के भाग गए हैं. So it's I mean, geopolitically, if you are in ASEAN, you are with them, थोड़ा leverage तो रहेगा. After all, if you are part of RCEP, you can shape a little bit. You can regain some influence in shaping the trade order. And as one writer said that China dominance के डर से is not the reason that we should stay away. Rather, China dominance को counter करने के लिए is the reason that we should stay in. But so ये debate अभी चल रहा है. पहले तो ये dead हो गया था because the government had taken a decision. But now that इनिशियल थिंग कि हम ट्रेडिंग अरेंजमेंट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, अब वो वापस वी आर मेकिंग ट्रेडिंग अरेंजमेंट. वी हैव रियलाइज्ड ड्यू टू द whimsicality ऑफ यूएस एंड ऑल दैट वी शुड हैव ब्रिजेस ऑन मेनी साइड्स. फ्यू मंथ्स बैक आई थिंक द नीति आयोग सीईओ ने ये फ्लोट किया है ना पेपर कि आरसीईपी पर पुनर्विचार करने की जरूरत है. तो कुछ थिंकिंग अभी फिर से चल रहा है. बट anyway, so that was the broad debate on RCEP, and how India is sort of part of it right now on the periphery, but it is still something under discussion. हो सकता है आपको एक साल में हेडलाइन में दिखेगा कि शायद हम फिर ज्वाइन कर गए हैं, क्या पता, या न भी करें. तो that's all. and चलिए आपके इसमें क्या विचार हैं? What do you think? Do you think it makes sense? It doesn't make sense? Anyone? एक दो और फिगर्स हमने जस्ट डाले थे which part of this argument. हमारा ट्रेड विद ASEAN, which was one of the reasons that we felt it was negative, and it is true. To today, our exports to ASEAN are 39 billion, imports are 84 billion. It's negative, but that's not the whole picture. ASEAN से हमें एक्चुअली इन्वेस्टमेंट जो मिल रहा है इज अगेन अबाउट 39 बिलियन, बट आउटफ्लो जो हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है इज 14 बिलियन. मतलब वो बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन आवर फेवर, ट्रेड इज अगेंस्ट. विद चाइना उस टाइम डर था कि सर्ज ऑफ चाइनीज इंपोर्ट्स 2019-20 में एक्सपोर्ट्स हमारे 16 बिलियन थे और इंपोर्ट्स 65, मतलब 50 बिलियन का डेफिसिट सिर्फ चाइना के साथ. आज
वो डेफिसिट 100 बिलियन का है। तो सर्च तो हुआ है, बट बिना RCEP के मदद से। पॉइंट इज दैट इट विल हैपन बिकॉज डिस्पाइट जो सारा हमारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ, एक तो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यू नीड। वन आई टोल्ड यू वाज फार्मास्यूटिकल थिंग्स, रॉ मटेरियल वहाँ से मिल रहा है जो इतना सस्ता मिल रहा है कि दैट यू डोंट गेट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। उसके उस पर हमारा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट निर्भर है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वो मिल रहा है जिस पर हमारा ये सारे जो आजकल मोबाइल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया, बट कंपोनेंट्स वहाँ से आ रहे हैं। सो थिंग्स विच आई मीन दैट इज हाउ द ग्लोबल व्हाट दे कॉल वैल्यू चेन वर्क्स। तो पॉइंट इज जो ओरिजिनल डर था वो आप चाहे आप RC में रहो या ना रहो वो तो हो रहा है, बिकॉज उसके रीजंस दूसरे हैं। रीजंस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उस पर निर्भरता है। ऑयल पर हमेशा हमारा डिपेंडेंस रहेगा, चाहे रशिया से आया या सऊदी अरेबिया से आया है, कहीं से भी आया है। तो दीज आर बेसिक स्ट्रक्चरल थिंग्स विच यू कैन नॉट डू अवे विद। तो आप बताइए। नहीं, सब कंट्री स्पेसिफिक होता है। इन द सेंस जनरल प्रिंसिपल द रूल्स हैं। जैसे जनरल प्रिंसिपल में बोला है कि 90% तक लाना है, लेकिन हर कंट्री किस पाथ पर लाएगा वो ही डिसाइड करेगा। मतलब वो कहेंगे कि आपका ये माइलस्टोन है, 5 साल में आप 50% ले आइए, फिर आप कमोडिटीज़ बताएंगे कि हम ये 50% कमोडिटीज़ लाएंगे। तो आप जो आप जैसे बोल रहे हो डेयरी वेरी का, वो हम लास्ट में ले सकते हैं। हम कहेंगे वो 15 साल में करेंगे या 20 साल में करेंगे। यू नो दैट थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, नहीं, बिकॉज अगर आप रिजॉइन करोगे तो आप तो उनके सिद्धांत में यू हैव टू एक्सेप्ट, बट उस पर आपका कंट्री स्पेसिफिक क्या टाइम टेबल रहेगा वो आपको बनाना है, विच हर कंट्री ने बना लिया है, वो तो उन्होंने अप्रूव कर लिया है। तो दैट स्टिल विल रिमेन फॉर नेगोशिएशन। एंड बाय एंड लार्ज इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज कोई ऐसा नहीं चाह रहा है कि इतने झटके में आए कि हमारी इंडस्ट्री बैठ जाए। बट जो रीजनेबल है कि आपको समय मिले जिससे आपको इंटरनल जो कुछ भी आपको सुधार करने हैं या कैपेसिटी बढ़ानी है उसके लिए समय मिल जाए। हाँ, नहीं, तो उसमें ये होगा कि विद इन दिस ग्रुप तो शांति रहेगी। आई मीन देयर विल बी समथिंग विच एवरीवन हैज एग्रीड ऑन। आउटसाइड तो वॉर हो सकते हैं, अब वो आज US है, कल कोई और है, दैट कैन हैपन, बट इट्स अ वेरी बिग चंक। तो इससे थोड़ा स्टेबिलिटी मिल जाता है कि आपका 30% ऑफ द वर्ल्ड इज का साथ हमारा ट्रेड जो है इट इज़ ऑन अ इवन फुटिंग, जिसमें कोई सरप्राइजेज नहीं होंगे कि जैसे और जगह हो रहे हैं। तो दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स। कहीं में हाँ हाँ नहीं, टैरिफ वॉर तो अब ये WTO का है काम, तो अब लोग मान नहीं रहे तो फिर क्या करो। वर्ल्ड बैंक और IMF का थोड़ा फुटिंग अलग है क्योंकि वो लेंड करते हैं पैसा, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और उसमें जो डिसीजन जो होता है वो कंट्रीज़ के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हिसाब से होता है। वन पर्सन वन वोट नहीं है उधर। तो जो आई थिंक जैसे USA का 15% वोट है बिकॉज वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और फिर ऐसा करके वो है, तो उसमें उनके इंटरेस्ट आर टेकन केयर ऑफ जो ज़्यादा शक्तिशाली कंट्रीज़ है। सो डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड। अब आपको 15% वोट दे दिया है
तो जो वर्ल्ड बैंक डिसीजन लेगा उसमें आप समर्थन कर रहे हो ऑटोमेटिकली, सो उसमें डिस्प्यूट नहीं होते। एंड फाइनली इट इज़ वही फाइनेंशियल है कि लोन इज गिवन, देयर इज एन एग्रीमेंट, उसमें कंडीशंस होते हैं, तो कंडीशन अगर कंप्लाइड पैसा मिल जाता है। और वो कंडीशंस इसलिए डालते हैं क्योंकि उनके परसेप्शन में ये करने से आपकी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, आपका थिंग्स विल गेट बेटर, जो अभी हालत में है उससे आप उभर पाओगे, और उभर पाओगे तो हमें अपना पैसा वापस मिलेगा। तो दैट इज़ हाउ दे लुक एट इट, लाइक अ बैंकर। तो अब वो है कि कुछ कंट्रीज हैं वो लेते रहती हैं। वो पाकिस्तान में आई थिंक वी हैव दैट प्रॉब्लम, वो हर IMF से लोन लेती हैं और फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाते शर्तें, फिर वो पॉलिटिकल प्रेशर में वो लोग और दे देते हैं। जैसे बैंक्स में भी कई बार होता है, बड़ी पार्टीज होती हैं, समटाइम्स यू रोल ओवर द लोन्स, सो दैट वे इट्स डिफरेंट। तो UN में प्रॉब्लम ये है कि UN में इट हैज़ नो टीथ कि वो इन्फोर्स कैसे करे, ओनली सहमति से होती है। अब सहमति एक बार टूट गई, यू कैन नॉट इन्फोर्स एनीथिंग। तो दैट इज देयर। सेम में WTO में भी वही दिक्कत है। हाँ जी, 2.5 अरे प्लीज हैव वाटर बॉटल। एनीबडी एल्स वांट्स प्लीज ले लीजिए, यहाँ आई थिंक है। हाँ जी, हाँ जी। चाइना का जो एक क्लेम है अरुणाचल प्रदेश पे, वो भी ग्लोबल लेवल पे कमज़ोर होगा। चाइना का आई डोंट नो अबाउट अरुणाचल प्रदेश, बट नॉर्थ ईस्ट से जो ट्रेड लिंक्स हैं वो तो संभव हैं। आई मीन उसमें ऑलरेडी आई थिंक कुछ काम चल रहा है, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ हाईवे राइट थ्रू, वो हो जाए। बट देन ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ इंसेंटिव है कि ट्रेड बढ़ रहा है तो उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अभी जैसे आपके मिज़ोरम तक रेलवे कनेक्टिविटी हो गई है, दैट इज़ वेरी क्लोज टू बर्मा बॉर्डर। दिक्कत वहाँ बर्मा में हो रही है क्योंकि वहाँ कुछ बॉर्डर एरिया में लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, अदरवाइज इट वुड गो फॉरवर्ड। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेक्ट फ्रॉम द लैंड रूट आल्सो। Sir, my perception is little bit contrary to it. Sir, what I believe, the country which is little bit poor in secondary sector, manufacturing sector, should not go directly in fight with a country which is very strong in it. As we are taking the example of China. China has already destroyed our toy industries. It is dumping its steel at a very low prices. So free trade agreement will be difficult for us to deal with if we are directly contesting with China. नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं ना, तो आई मीन दैट इज द पॉइंट। जो चाइना से हमें चाहिए है वो तो हम ले ही रहे हैं। और उसके अलावा चाइना को तो इतना इंडियन मार्केट में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो तो US वगैरह में सारा सामान डाल रहे हैं। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट। जितना स्कोप है इट्स ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, सो इट मे बिकम अ लिटिल वर्स। बट मेन पॉइंट इज कि जब तक कि हम फेस ना करें, बस चाइना भी आप ये मत भूलिए कि 1980s तक चाइना हमारा बराबर था इकोनॉमिकली, ट्रेड में हमसे थोड़ा पीछे ही था। अब उनकी क्या नीतियां हैं, ऑफ कोर्स उनका सिस्टम अलग है, थोड़ा टोटलिटेरियन सिस्टम है, बट इकोनॉमिक साइड में उन्होंने लिबरलाइज कर दिया। जो फेमस उसकी वो डेंग की सेइंग थी ना कि दैट इट डज नॉट मैटर इफ द कैट इज ब्लैक और वाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेज माइस। मतलब कि हमें मतलब नहीं है कम्युनिज्म कैपिटलिज्म, बस हमारा पैसा बनना चाहिए। तो हमें भी थोड़ा सा वो माइंड सेट रहना चाहिए। एंड आई एम श्योर, तो वही कहते हैं लोग, हमारे
एंटरप्रेन्योर्स किसी से कम नहीं है, सेक्टर्स जहाँ कंपटीशन है दे आर डूइंग क्वाइट वेल, इवन दीज बिग ग्रुप से आपके टाटा और रिलायंस और ये सब चीज़ें, दे आर ऑल डूइंग वेल, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स आर डूइंग वेल, तो compete करने की बात नहीं है, बट इंटरनल पॉलिसीज में थोड़ा वी हैव टू इम्प्रूव अ लिटिल बिट, और हमें तो लगता है चाइना को भी टेक ऑन कर सकते हैं। ये है, यू राइट, आई मीन सडनली आप खोल देंगे तो दे विल बी अ डिफिकल्ट इशू, बट मुझे लगता है इनका फ्रेमवर्क थोड़ा ठीक है। अभी हम जो FTA करेंगे वगैरह US वगैरह के साथ, तो उसमें थोड़ा झटका हो सकता है, बिकॉज सपोज वी एग्री, आई होप दे डोंट, बट अगर ये एग्रीकल्चर या ऐसी चीज़ों में अगर मान जाए तो US तो कहेगा कि आज से लागू करो, दे आर नॉट गोइंग टू से कि 10 साल के बाद करो, तो इसलिए बहुत बड़े फूक फूक के चल रहे हैं, बट समथिंग विल हैपन, आई डोंट नो व्हाट इट इज, दे आर इतना ज़्यादा जो प्रेशर डाल रहे हैं, इट इज़ नॉट कि दैट दे आर गोइंग टू एग्री टू एवरीथिंग दैट वी वांट। So China, this is indirect. In fact, countries like Australia and all, they are hostile to China. I mean, Japan is part of Western Alliance. कोरिया और चाइना के झगड़े चलते रहते हैं, बट इस फ्रेमवर्क में सब डील कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग इन डायरेक्ट 1-to-1 बेसिस। आपको ये 15 कंट्रीज का बैकिंग है, तो दे फाउंड दैट दिस इज अ सॉफ्टर वे ऑफ डीलिंग विद देम। नो डाउट कि चाइना सबसे पावरफुल है इन सब में, लेकिन अकेला नहीं। आप अकेला चाइना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और समथिंग है, तो वो तो हमेशा चाइना जीतेगा। दैट इज पार्ट ऑफ द थिंग। WTO इसलिए अच्छा था बिकॉज छोटे कंट्रीज के लिए इट वाज अ नाइस फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स कि एवरीबडी इज इक्वल और हम डिस्प्यूट ला सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, इंडिया वेरियस कंट्रीज़ के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, तो सर इससे जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने में कुछ हेल्प मिलती है क्या सर? कौन सा एग्रीमेंट में? जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है सर वेरियस कंट्रीज़ के साथ, जैसे अभी सर UK के साथ नेगोशिएशंस हो रहा है, तो उससे जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम किया जा सकता है क्या? दैट इज द होप, दैट इज द होप। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेप्ट। आई थिंक UK के साथ आई डोंट नो कि एग्जैक्ट डिटेल, बट देर आर सम एरियाज जहाँ जैसे कि ऑटोमोबाइल, तो इन स्मॉल कार्स इंडिया का एडवांटेज है। अगर वो थोड़ा लिबरलाइज कर लें वहाँ, रिड्यूस देयर टैरिफ्स, तो एक्सपोर्ट मार्केट मिल जाएगा। उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं थिंग्स लाइक जैसे वो क्या स्कॉच विस्की और ये वो हम लोग लिबरलाइज करेंगे, उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज कितने लोग हैं जो लेंगे। तो यू माइट एंड अप विद बेटर बैलेंस, वन डजंट नो। हो सकता है कि ऑटोमोबाइल जाए नहीं और विस्की आए, दैट इज माइट बी। बट जब ये एग्रीमेंट करते हैं तो ईच पार्टी थिंक्स दैट दे आर गेटिंग अ गुड डील। UK भी सोच रहा होगा कि हाँ इससे हमें फ़ायदा है। फाइनली देखते हैं विच वे इट गोज़, बट ऑन द होल टैरिफ कम हो तो दोनों कंट्रीज को कुछ फ़ायदा रहता है। एंड वन फ़ायदा एज आई सेड इज के दैट अपने इंडस्ट्रीज विच आर इन कंपीटिंग सेक्टर्स, दे लर्न टू डील विद इट। सर जैसे चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है काफ़ी सर हमारा, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? और शॉर्ट रन में नहीं, बट वी कैन ओनली ट्राई एंड फाइंड, नॉट फॉर इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन मतलब चाइना से सस्ता कहीं नहीं है, बट फॉर द स्ट्रेटेजिक रीजन्स अदर सोर्सेज ऑफ सप्लाई अगर कहीं मिल रहे हैं। जैसे अब ये वो क्या होता है रेयर अर्थ्स में, चाइना इज़ यूजिंग दैट नाउ एज अ लीवर बिकॉज 90% ऑफ सप्लाई उनके पास है। लेकिन और कंट्रीज में भी है, जैसे ये साउथ अमेरिका में और जगह है। तो एवरीवन इज ट्राइंग टू बिल्ड अप देयर कैपेसिटी कि और जगह से भी मिलने लगे, तो इतनी निर्भरता जो है वो कम हो। सो वी हैव टू वर्क अराउंड, दैट इज व्हाट आई मीन। जैसे ना ऑयल में एज अ रिजल्ट ऑफ यूक्रेन एंड ऑल दैट, हमें एक्चुअली एक और सोर्स ऑफ सप्लाई मिल गया है जो पहले इतना नहीं था। रशिया से कौन मंगाता था, सब मिडिल ईस्ट से आता था। बट बिकॉज ऑफ दिस नाउ यू गॉट दैट। मे बी आज सैंक्शन है, कल नहीं है,
you can go back to importing from there, you know. तो you have to diversify. तो हम dependent नहीं हैं किसी पर. Otherwise Middle East पर dependent है तो कल सऊदी अरेबिया या कोई बंद कर दे तो you are in trouble. So that is the only way. It cannot happen in short term. That's why I'm saying आज आप cut off करो, which is why वो गलवान और वो सब के बाद भी हम पूरा cut off नहीं कर पाए, क्योंकि फिर हमारा वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बैठ जाता. So that is how it is. तो इसलिए along with tensions ये थोड़ा manage भी करना पड़ता है. थैंक यू सर. Thank you. गुड आफ्टरनून सर. सर मैं बोलना, ये अभी हाल ही में सर माननीय मंत्री जी पीयूष गोयल जी ने यूरोप के कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया था कि ट्रेड इज़ ट्रेड, और उसके लिए इंडिया को पिन पॉइंट क्यों किया जा रहा है, जो टैरिफ लगाया जा रहा है. तो यही बात हम RCEP के मतलब उसके बैकड्रॉप में कैसे मतलब इसको जस्टिफाई कर सकते? सॉरी आई डिडंट पूरा समझा नहीं आपने कहा. सर मतलब जैसे कि इंडिया को पिन पॉइंट किया जा रहा है कि जो टैरिफ लगाया गया. हाँ, यूएसए में. तो माननीय मंत्री जी कहना चाह रहे थे कि मतलब पिन पॉइंट इंडिया को क्यों किया जा रहा है, ट्रेड इज़ ट्रेड. तो RCEP के साथ भी हमारे कुछ कंसर्न्स है, तो फिर उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मतलब ट्रेड इज़ ट्रेड नहीं, बट दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, बट दैट इज नॉट द व्हाट इज हैपनिंग. जो पहला स्लाइड में बताया था कि अब तो इट इज, अगर आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो दैट इज व्हाट द यूएस इज डूइंग, कि जिसको मर्जी आई आपने टैरिफ लगा दिया. आई मीन इट इज़ नॉट इन आवर इंटरेस्ट, इट इज़ नॉट इवन इन देयर इंटरेस्ट, बिकॉज हम दुनिया भर पर टैरिफ लगा देंगे तो उनके यहाँ जो इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ हैं सबके प्राइस बढ़ेंगे, उनका कंज्यूमर चलाएगा. बट वो 6 महीने 1 साल के बाद चलाएगा, आज तो कर रहे हैं. तो दैट इज़ आई मीन अगेन ट्रेड इज ट्रेड, बट व्हेन पीपल आर नॉट फॉलोइंग दैट यू हैव टू फाइंड अ वे अराउंड. तो ये सही है, बट RCEP में ये है कि दैट द होप इज कि ये ब्लॉक थोड़ा स्टेबल रहेगा. और एक और पॉइंट लोगों ने कहा कि जैसे अगर RCEP चाइना का लीडरशिप में होता तो ये कभी सफल नहीं होता, क्योंकि चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया की नहीं बनती, जापान की नहीं बनती, इंडिया की नहीं बनती. वी वुड नेवर एग्री. बट ये कंट्रीज़ एग्री कर गए क्योंकि ASEAN कंट्रीज़ लीड कर रही हैं, और ASEAN कंट्रीज़ कमज़ोर हैं, वो किसी को थ्रेट नहीं है, और वो एक ग्रुप है. सो दे विल ट्राई एंड क्रिएट लेवल प्लेइंग फील्ड, जिससे कि सबको थोड़ा फ़ायदा हो. दे ऑल्सो डोंट वांट कि हम ऐसा बनाए कि जो चाइना हम पर डोमिनेट करे. तो इसमें देयर इज़ अ होप कि स्टेबल अरेंजमेंट डेवलप हो जाए. मतलब फ़िलहाल जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनके लिए तो थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई है, बट दे आर स्टिल ट्राइंग. एंड खासकर आई थिंक इंडोनेशिया एंड जापान, ये मतलब ऑफिशियल रादर पॉलिटिकल लेवल पर जब इंटरेक्शंस हुए हैं तो उन्होंने अपने एजेंडा में डाला है कि आप लोग वापस आ जाइए. सो देयर इज़ अ डिमांड फ्रॉम विद इन ऑल्सो. तो एज आई टोल्ड यू, अभी नीति आयोग के जो कुछ स्टेटमेंट से हिसाब से लग रहा है कि कुछ पुनर्विचार चल रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स गिव अस सम ऑप्शंस कि आप बिल्कुल ही डिपेंडेंट ना हो जाए वेस्ट पर. थैंक यू सर. Anyone else who would like to ask questions? कोई और है जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप में से? कोई नहीं? Thank you so much, sir, for today's session. And like we were observing that our participants had really gained a knowledge from your valuable insights, sir. And thank you so much once again.